إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ایک دن دنیا فنا ہونی ہے، اور دنیا کے فنا ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہے۔ قیامت کا دن ہے، حساب و کتاب ہے۔ وہ انسان کامیاب جس نے اپنی زندگی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لی، وہ انسان ناکام جو دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی من کی باتوں کے پیچھے چل پڑا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا، عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر بڑی بڑی محنتیں کرنے والے قیامت کے دن تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنا طریقہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے بنا لیا، جنہوں نے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اپنے بنائے ہوئے بناوٹی طریقے کے پیچھے چل پڑے، اسی کو دین سمجھنے لگے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ مارے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تسلا نارن حامیہ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ قرآن مجید کے ہی تعلق سے چند باتیں میں رکھوں گا۔ اب تک جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا تفسیر قرآن کا، تو آج میں جمعہ کے خطبے کے اندر قرآن مجید کے تعلق سے ہی انشاءاللہ چند باتیں رکھوں گا، تاکہ ہماری سمجھ میں یہ باتیں اچھی طرح سے واضح ہو جائیں، سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن مجید کے اندر یا قرآن مجید کی صورتوں کے تعلق سے کون سی باتیں صحیح ہیں، کون سی باتیں غلط ہیں۔ ایک انسان کی ذمہ داری ہے وہ صحیح باتوں کو اپنائے، صحیح باتوں کو سمجھے، پرکھے، ان کو جانچے اور ان کے مطابق عمل کرے، اور جو باتیں بے بنیاد ہوں، باطل ہو، جھوٹی ہو، جن کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہ ہو، چاہے ان کا کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سکھایا، یہ بتایا کہ اگر شیطان بھی اچھی بات بتا دے، کہہ دے، اور وہ بات نبی کی بات سے ثابت ہو، اللہ کی بات سے ثابت ہو، رب کے قرآن سے ثابت ہو، تو شیطان کی بات کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور کہنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ بات رب کے قرآن میں نہ ہو، نبی کے فرمان میں نہ ہو، تو اس کی بات کو چھوڑ دینا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ آج کے اس انشاءاللہ خطبے کے اندر یہی میں دو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کی صورتوں کے تعلق سے، چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جو رسول اکرم پہ نازل ہوئی، ہم نے قرآن کی اچھی باتوں کو تو چھوڑ دیا اور اپنی بناوٹی باتوں کو پرچار کرنے کے لیے، سماج میں پھیلانے کے لیے اتنا پھیلا دیا کہ لوگ ان جھوٹی باتوں کو دین سمجھنے لگے، اور جو نبی کی سچی باتیں تھیں ان باتوں کو جھوٹ سمجھنے لگے۔ یعنی مطلب مقصد الٹا ہو گیا ہے بالکل۔
اس کی مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں دنیا کی زندگی کے اعتبار سے جو لوگوں کے اندر مشہور ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مسجد نبی کے اندر نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جو انسان خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے ایک وقت کی نماز، تو خانہ کعبہ کی ایک نماز اور دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازیں، خانہ کعبہ کی نماز زیادہ بہتر ہے ایک نماز۔ اب لوگوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں جنہوں نے حدیثوں کو وضع کیا، جھوٹی حدیثیں بنائی، اسلام کی تعلیم کو بگاڑنے کی کوشش کی، انہوں نے ایک نئی حدیث پیدا کی اپنے پاس سے جو حدیث کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک نئی بات پیدا کی، وہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر اور آپ وہاں پر ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 7,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، جو رب کا گھر ہے، جس کی طرف تمام مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں کی ایک نماز دنیا کی 1,00,000 نماز ہے، یہاں کی ایک نماز بہتر ہے، تو لوگوں نے ایک نئی بات پیدا کر دی سماج کے اندر، اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 7,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس طریقے سے دین کے اندر جھوٹی باتوں کو داخل کیا گیا اور لوگوں کو ان جھوٹی باتوں پر یقین دلایا گیا، اعتماد دلایا گیا اور ان جھوٹی باتوں کو دین بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے سماج کے اندر کچھ الگ نظریے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان صورتوں کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو حق ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی آدمی اپنی رائے سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ آپ نے دیکھا سماج کے اندر کسی آدمی نے قرآن کا ترجمہ کیا، کسی آیت کا محدث نے، تو آج کے کچھ وہ لوگ، وہ مسلمان جو کسی عالم کے ساتھ میں جڑ گئے، جن کا اٹھنا بیٹھنا عالموں کے ساتھ میں ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ان کی بات سنیے آپ، امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کو اپنی کتاب کے اندر تفسیر طبری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے، ایو ارض تقلنی و ایو سماء تظلنی اذا كنت فی القرآن بما لا اعلم۔ کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، چھپائے گی، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا جب میں قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں، جس چیز کا میرے پاس علم نہ ہو، میں قرآن کے بارے میں ایسی بات کہوں تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اور کون سا آسمان مجھے اپنے سائے میں چھپائے گا، جگہ دے گا۔ یعنی صحابہ اکرام اتنا ڈرتے تھے اپنی رائے سے کتاب کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے، کتاب اللہ کے بارے میں۔ آج کوئی بھی آدمی، ادنا سا مسلمان، ذرا سا جسے کتاب و سنت کا علم بھی نہیں ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ایسا ہے، ہم نے فلاں کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ پہلے تحقیق کیجئے اس بات کی، اس کی تہ تک جائیے، اس کے بعد اپنی زبان سے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہیے۔ وہ کتاب جو آسمان سے آئی تھی راستہ دکھانے کے لیے، جو آسمان سے آئی تھی ہدایت کے لیے، جو آسمان سے آئی تھی انقلاب پیدا کرنے کے لیے، جو آسمان سے نازل ہوئی تھی حکومت سکھانے کے لیے، حکومت دینے کے لیے، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کے غلامی اختیار کی، اس کتاب کو چھوڑ کے قانون کو ختم کر دیا، ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر ہدایت سے ہم بھٹک گئے۔ اللہ کی اتنی پیاری کتاب، تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں تو بہت بڑے عالم ہیں، فلاں تو بہت بڑے وکیل ہیں، وہ تو جج ہیں، وہ تو غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، انسان ہے۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، دین کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں انبیاء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، دنیاوی معاملات کے اندر نبیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، دین کے بارے میں نبیوں سے غلطی نہیں ہوا کرتی ہے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया, जबकि शहद एक हलाल ग़िज़ा है। साहबा ने मशवरा लिया अल्लाह के नबी से खजूरों के बारे में, आपने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, साहबा को नुकसान हो गया। कहा कि मुझे दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है, तुम ही ज़्यादा जानते हो, जैसा तुम करते थे वैसे ही करो। लेकिन जब दीन का मसला आता है, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन फंतहू, हमारा नबी जो हुक्म दे ले लो उसे, और जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। नबी से गलती नहीं हुआ करती। तो आज के खुतबे में इंशाअल्लाह यही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ सही एक तरफ गलत, कुरान की वो सूरतें जिनकी फजीलतें सही सनद से साबित है उनको अपनाइए, और जिनकी साबित नहीं है उनको छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए हम तो फला को मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, हम क्यों सुने, हम क्यों माने। सब नबी को मानते हैं, और नबी की मानती हो तो सुननी पड़ेगी, और नबी की नहीं मानते तो किसी की मत सुनो, आपकी मर्जी है। अगर नबी की मानते हो तो सुननी पड़ेगी, अमल करना पड़ेगा। कामयाबी चाहते हो सुननी पड़ेगी, जन्नत में जाना चाहते हो माननी पड़ेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें। एक तो होता है कोई सही बात बताना, और एक होता है सही बात बता के अमल करना, और एक होता है झूठी बात बताना, झूठी बात बता के अमल करवाना ज़बरदस्ती। ये दो अलग बातें हैं। आइए मैं पहली बात की तरफ चलता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात को वाज़ेह करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज हुई, आप आसमान पे गए, आपने सातों आसमानों की सैर की, तो कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, आपने उनको देखा कि जिनके होंठ कैंची से काटे जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान का सर्दी के मौसम में होंठ फट जाए बड़ी तकलीफ़ होती है। आदमी जो है न जाने कैसी कैसी क्रीम और दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल करता है ताकि ज़रा सा होंठ फट गया उसमें से खून आ रहा है और ये इंसान को तकलीफ़ दे रहा है, परेशानी पहुंचा रहा है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और यहाँ तो मसला है होंठों को कैंची से काटे जा रहा है। रसूल अकरम अपनी आँखों से देख रहे हैं मेराज के मौके पर। जिब्राईल ने अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं, तो फरमाया हुम खुतबाउका अन्नज़ीना यक़ूमून बिमा यफ़अलून, ये आपकी उम्मत के वो ख़तीब हज़रात हैं, ये मस्जिद के वो इमाम हैं, ये मस्जिद के मिंबरों से खुतबा देने वाले वो हज़रात हैं जो कहते कुछ थे करते कुछ थे। वयक़राऊन किताबल्लाह, कुरान को पढ़ा करते थे। आज हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर हाफिज़ कुरान मिल जाएगा। वयअमलून बिही वमा यअमलून बिही, उस पर अमल नहीं करते थे। बस अब तो ये सिस्टम बना दिया गया है कि हाफिज़ कुरान बन जाओ, अपनी पीढ़ी को जन्नत के अंदर लेके चले जाओ। बाप का राज है, लेके चला जाएगा। इतना आसान नहीं है। जो आज ये गलत फहमी फैलाई जा रही है समाज के अंदर, अल्लाह ने क्या कहा, नबी कह रहे हैं वयक़राऊन किताबल्लाह, कुरान को पढ़ते थे वो, वमा यअमलून बिही, उस पर अमल नहीं करते थे। अगर पढ़ना काफ़ी होता तो क़यामत के दिन या मेराज के मौके पे कैंचियों से उनके होंठ नहीं काटे जा रहे होते। अमल का अगर अमल की ज़रूरत नहीं होती, अगर अमल नहीं होता शरीयत के अंदर, तो हाफिज़ कुरान होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद, इतना दर्जा होने के बावजूद, एक आलिम की फजीलत आप जानते हैं आबिद के ऊपर, जैसे अल्लाह के नबी की फजीलत तमाम इंसानों के ऊपर है, ऐसे एक आलिम की फजीलत है, इसके बावजूद उसके होंठ काटे जा रहे हैं मेराज के मौके पर। क्यों? वमा यअमलून बिही, वो पढ़ने के बाद इस पर अमल नहीं करता था। यानी हाफिज़ कुरान बनने के बाद अमल भी करना पड़ेगा, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, ज़कात भी देनी पड़ेगी, माँ बाप का कहना भी मानना पड़ेगा, रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी, बुरे काम से बचना भी पड़ेगा, नेकियों का हुक्म भी देना होगा, बुराइयों से मना करना भी होगा। ये सारे काम करने के बाद तब जाके आप कामयाब होंगे, तब जाके जन्नत मिलेगी। ये थोड़ी नहीं कि बस ऐसी जन्नत मिल जाएगी आप कुछ भी ना करें। सही अंजाम है हदीस नंबर 129। तो ये हदीस पाक हमें बताती है कि कुरान की बात को बताना, उस पर अमल न करना, ये बड़े नुकसान का सबब है। अब आइए हम चलते हैं चंद उन सूरतों की फजीलत की तरफ जो किताब और सुन्नत से साबित है, और फिर आऊँगा मैं उन बातों की तरफ जो हमारे समाज के अंदर राइज हैं। हमारे समाज में उन पर कसरत से अमल होता है। यूट्यूब पर बड़े बड़े लंबी टोपी पहनने वाले उन बातों का प्रचार करते हैं, समाज के अंदर लोगों को बहकाते हैं, और आवाम
झूमती है उनकी बातें सुनकर। अवाम भी उन बातों पर अमल कर दिए कि कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, लेकिन उस अच्छी बात का अल्लाह के नबी से कोई सबूत नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो अच्छी बात कहाँ गई? उसका अच्छा होना ही ख़त्म हो गया ऑटोमेटिक। जब कोई बात नबी से साबित नहीं तो वो बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसका अच्छा होना ही ख़त्म हो गया। पहली चीज़ मिसाल के तौर पर सूरत बकरा है। ये चंद मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ। सूरत बकरा की फजीलत हदीस से साबित है। नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न सूरतन फिल कुरान, कुरान मजीद के अंदर यह सूरत है सूरत बकरा के नाम से। इन्न शैतान यनफिरु मिन बैतिन लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरत बकरा, जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। सही मुस्लिम किताब सुन्नतुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 780 तो सूरत बकरा की फजीलत हदीस से साबित है, आप इसको पढ़ें। लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, 2.5 पारे की सूरत है, कहाँ से आप वक्त निकालेंगे? क्योंकि आपने अपना मामूल ऐसा बना दिया है कि आपको दुनिया में घूमने का वक्त है, गप्पे शप्पे मारने का वक्त है, दोस्तों के पास जाने का वक्त है, मोबाइल चलाने का वक्त है, गाने सुनने का वक्त है, रातों को जागने का वक्त है। जब रब के कुरान की बात आती है पढ़ने की तो आपके पास वक्त नहीं है, ये आपसे पढ़ना नहीं आता है। गाने तो आपको आते नहीं, गाने सुनते ही तो है आप मोबाइल के अंदर, तो कुरान क्यों नहीं सुन लेते? उससे बेहतर है, आपके फ़ायदे का सौदा है। तो ये इंसान की फ़िक्र, ये इंसान की सोच है। अच्छाई को अपनाने में उसे हिचकिचाहट होती है और बुराई को अपनाने में उसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। तो सूरह बकरा की फजीलत साबित है, इसको पढ़िए आप। एक हदीस में आपने फरमाया, इक़राउ बकरा, सूरह बकरा को पढ़ा करो। फ़इन्न अख़ज़हा बरका, इसको लेना, इसका पढ़ना बरकत का सबब है। वह अख़ज़ुहा हसरा, और सूरह बकरा को ना पढ़ना, इसको छोड़ देना, ये हसरत अफसोस का सबब है। वमा यस्ततीउहा अन बतना, जादूगर इसके तोड़ की ताकत नहीं रखता। as-सहीह हदीस नंबर 3992। यानी अगर आप सूरह बकरा को पढ़ते हैं तो घर में रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो आपके ऊपर अफसोस है, हसरत है, नदामत है, शर्मिंदगी है। और आप पढ़ते हैं तो जादूगर आपका मुकाबला नहीं कर सकता, शैतान भाग जाएगा आपके पास से, आपके पास छेड़ नहीं सकता। ये फजीलत हदीस से साबित है। इसी तरह सूरह आल इमरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूता बिल कुरान यौमल क़ियामत व अहलिहिन लज़ीना कानू यअमलून बिही तक़दुमुहा सूरतुल बक़रा व आल इमरान तुहज्जान अन साहिबिहा, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सुन्नतुल मुसाफिरीन। नबी अकरम ने फरमाया, सूरह बक़रा, सूरह आल इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन इन दोनों सूरतों को बुलाया जाएगा, सूरह बक़रा भी आएगी। अल्लाह ताला इनको ढांचा देगा, क्या देगा वो बेहतर जानता है किस तरह से ये आएंगी। सूरह आल इमरान को बुलाया जाएगा, ए सूरत तू भी आ, सूरह बक़रा तुम भी आओ, दोनों आएंगी। फिर जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में इन दोनों सूरतों को पढ़ा करता था उसको भी बुलाया जाएगा, वो भी आएगा। तो हज्जान अन साहिबिहा, ये दोनों सूरतें अपने रब से झगड़ेंगी, परवरदिगार ये दुनिया के अंदर हमें पढ़ा करता था, इसको माफ़ कर दे, बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों सूरतों की बात सुनेगा, उसको माफ़ किया जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 805। तो आप देखें, सूरह आल इमरान, सूरतुल बक़रा, इनकी फजीलत अल्लाह के नबी के फरमान से साबित हो गई। आप इनको पढ़ें, इनका पढ़ना सवाब है। क़यामत के दिन ये दोनों सूरतें आपको जहन्नम में जाने से बचाएंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या कुरान पढ़ते हैं? अगर अभी सवाल कर लिया जाए मस्जिद के अंदर बैठे तमाम इंसानों से, तो शायद पता नहीं हमें कितने कितने दिन हो जाते हैं कुरान को खोने हुए, कुरान को पढ़े हुए। पढ़ना नहीं आता, कुरान को सुने हुए। जोश तो बहुत है, बातें करने का वक्त तो बहुत है, ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे। नेतागिरी तो जितनी चाहो उतनी करवाएंगे। शायद मुसलमानों से ज़्यादा कोई करता हो, अच्छी कर ले, बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ सारी नेतागिरी है, सब झड़ जाएंगी। हुकूमत उसकी होगी, बादशाहत उसकी होगी, हुक्म उसका चलेगा, कानून उसका होगा। हम सब मुजरिम बन के उसके दरबार में खड़े होंगे, वो पूछेगा। वक्त निकालिए कुरान को पढ़ने का।
जो ये जुमा के खुतबों के अंदर दरस कुरान की बातें हो रही हैं, कुरान की सूरतों की तफसीरें बयान हो रही हैं, इसलिए ताकि आपकी इसना हो, आप अपने अंदर कुरान के जज्बे को पैदा करें, आप कुरान की तालीमात पे अमल कर सकें। याद रखिए, यही वो किताब है जब आप कब्र में जाएंगे, कब्र के अंदर पहुंचेंगे, फरिश्ता आपसे पूछेगा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। अगर तुमने जवाब दे दिया, फरिश्ता पूछेगा तुझे कैसे पता, इन सवालों के जवाब ये थे, तुझे कैसे मालूम हुआ। तो वो बंदा मोमिन जो कब्र में है जवाब देने वाला, वो कहेगा करा तो किताब अल्लाह है वामन तो वही वसद्दक़्त हूँ, मैंने दुनिया में अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं उस पर ईमान लाया था, मैंने उसको सच्चा जाना था। आप तो पढ़ते नहीं हैं, तो आप जवाब कैसे देंगे। जब पढ़ोगे तभी जवाब दोगे, और नहीं पढ़ोगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। वहाँ कुछ काम नहीं आने वाला, आमान काम आएंगे। बेघर तो ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन इंसान के हक़ में सिफारिश करेंगी। इसलिए कुरान को अपना सिस्टम बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी बना लीजिए, अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। सुबह पढ़िए, जब भी मौका मिले जब पढ़ें, रात को सोते वक्त ज़रूर पढ़िए। आप थोड़ा आगे चलते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है, हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलल्लाह कद शिब्त, आप तो बूढ़े हो गए। कैसे पता चला? कुछ बार में सफ़ेदी नज़र आ रही थी। कहा अबू बकर ऐसा नहीं है, शय्यबतनी हूद वंग वाक़या वंग मुरसलात व अम्मा यतसाअलून व इज़ा शम्स कुव्विरत। सुनन तिरमिज़ी तफ़सीर कुरान हदीस नंबर 3297। अबू बकर कुरान उठाओ, सूरह हूद पढ़ो, मुझे इसने बूढ़ा कर दिया। सूरह वाक़या पढ़ो, मुझे इसने बूढ़ा कर दिया। सूरह मुरसलात पढ़ो, 29वें पारे की आखिरी सूरह इसने बूढ़ा कर दिया। अम्मा यतसाअलून 30वें पारे की पहली सूरह मुझे इसने बूढ़ा कर दिया। इज़ा शम्स कुव्विरत, अबू बकर मुझे इन तमाम सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। इनके अंदर अल्लाह ने क़यामत के खौफनाक मंजरों को बयान किया है, आखिरत की फ़िक्र पैदा करने वाली बातें बयान की हैं, मुझे इन्होंने बूढ़ा कर दिया है। ये नबी का अंदाज़ था कुरान को पढ़ने का, समझने का। आज वक्त नहीं है आपके पास, फुर्सत नहीं है आपके पास, बहुत वक्त है आपके पास बाहर कुर्सियों पे बैठने के लिए और गप्पे शप्पे मारने के लिए। एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। क़यामत कातिबीन बैठे हुए हैं, आपके नोटिस बना रहे हैं, आपका नोटिस। जैसे आप यहाँ से जाएंगे, आपकी पेशी होगी कब्र के अंदर, वहाँ पे हिसाब व किताब होगा। जब कब्रें फटेंगी क़यामत के दिन, अल्लाह के सामने आपके दफ्तर होंगे, आपके नोटिस होंगे सारे, और आपको दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा। क्या जवाब दोगे, क्या मुँह दिखाओगे? वो एहसास ख़त्म हो चुका हमारे अंदर से। अब तो दिन भी इतने ज़िद्दी हो चुके हैं, इतने हरदम हो चुके हैं, जैसे लोहे पे जंग चढ़ जाता है ना बारिश के मौसम में, ऐसे जंग लग चुका है। कितना भी समझाएंगे, कितना बताएंगे, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। वही वाली कहानी चल रही है। सुधारिए अपने आप को, इस तरह की फ़िक्र कीजिए, अपने आप को बनाओ, संभालो, फ़ायदे में रहोगे, वरना अल्लाह की कसम मारे जाओगे, नुकसान में पड़ जाओगे, खसारे में पड़ जाओगे। थोड़ा आगे चलिए, सूरह कहफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हफ़िज़ अश्र आयात मिन अव्वल सूरत कहफ उसिमा मिन फितनत दज्जाल। सही मुस्लिम किताब सुन्नत मुसाफिरीन हदीस नंबर 809। जिस आदमी ने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद करनी, 10 आयतें याद करनी, वो दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया, बचा लिया गया। अगर दज्जाल आपके सामने आ जाता है और आप सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें पढ़ लेते हैं, तो दज्जाल आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। फजीलत साबित हो गई, ईमान और यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी ने ये बात कही है, सच है, अटन है, इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। तो ये थी वो चंद मिसालें जिनसे हमें मालूम होता है कि कुरान की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनकी फजीलत साबित है और हमें उनको पढ़ना चाहिए। अब चंद बातें उन सूरतों के बारे में जिनके बारे में समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सूरत बड़ी फजीलत वाली है, इसको पढ़ने से तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, इसको पढ़ने से 10 कुरान का सवाब मिलता है। ये बातें किसने बताई? हम जैसे मौलवियों ने बताई, मिंबरों से, यूट्यूब के ज़रिए से, और बता के आवाम को बहका दिया, गुमराह कर दिया। और उन्हें डर नहीं है कि जितने लोगों ने इस हदीस पे अमल किया, जितने लोगों ने इन झूठी बातों पे अमल किया, उन सब के गुनाहों का वबाल हम पे पड़ने वाला है। वो एहसास भी ख़त्म हो गया। सबसे पहली सूरत सूरह यासीन है, जिसके बारे में समाज और मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। लोग कसरत से पढ़ते हैं, दुकानों पे जाओ यासीन,
ठेंगों पे देखो यासीन, आवाज़ें निकल रही हैं माइकों के अंदर, यासीन शरीफ लीजिए, ताबीज़ का खोल लीजिए, फला चीज़ खरीदिए। लोग सुन रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। हमारे सामने बुराई हो गई है, नबी की हदीसों की मुखालफत हो गई है और हम खड़े हुए बैठे हुए सुन रहे हैं। सूरह यासीन के बारे में हदीस की किताबों के अंदर एक भी हदीस साबित नहीं है फजीलत के बारे में। किसी के पास हो तो साबित कर दे इस बात को। याद रखिए, सब जानते हैं कि हदीस मौजू है, झूठी है, कोई असर नहीं है उस चीज़ की, लेकिन सुबह पढ़ोगे तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। यासीन तो कुरान का दिन है, जिसने सूरह यासीन को पढ़ा उसको 10 कुरान का सवाब मिलेगा। ये झूठी हदीसें समाज के अंदर फैलाई गई और लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को उठा के रख दिया जुज़दान के अंदर बांध के। यासीन शरीफ छोटी छोटी किताबें बांटे जा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं झूठी बातों के ज़रिए से। याद रखिए, अल्लाह की कसम, वो कमाई भी हराम है जो झूठी बातों के ज़रिए कमाई जाती है। जिस चीज़ के बारे में नबी की हदीस साबित ना हो, तुम उसे समाज के अंदर बांट रहे हो, फैला रहे हो। तो आज यासीन के बारे में सिस्टम ऐसा बन चुका है, सुबह होते ही लोग यासीन पढ़ते हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो गई, यासीन शरीफ पढ़ी जा रही है। किसी की मौत का वक्त आ गया, यासीन पढ़ी जा रही है। किसी का इंतकाल हो गया, यासीन पढ़ी जा रही है। किसी ने मकान खरीदा, यासीन पढ़ी जा रही है। किसी ने गाड़ी खरीदी, यासीन शरीफ का विरोध हो रहा है। कहाँ से आई बातें भाइयों? क्या नबी ने बताया? तहकीक किया आपने? नहीं। अभी इलेक्शन का मसला चल रहा था, लोग कह रहे थे वोट हमें दीजिए। नहीं, हमारा अधिकार है, बहुत सोच समझ के वोट देनी है जिसको देंगे। दुनिया की बात आई तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, बड़े होशियार बन गए अपने आप के अंदर। जब नबी की बातों का मसला आया तो हम कुछ नहीं जानते, हमारे मुफ्ती साहब ने हमें बता दिया, हम तो उनके पीछे पीछे हैं। भाई साहब, ये सिस्टम बना दिया समाज का। नबी की हदीसों की मुखालफत हो गई है और झूठी बातों को समाज में आम कर दिया गया। पढ़े लिखे खामोश बैठे हुए हैं, लोग दीन के बारे में नई नई बिदातें पैदा कर रहे हैं और हम चुपचाप तमाशाई बनते हुए वो तमाशाई मंजर देख रहे हैं। याद रखिए, जितना बड़ा मुजरिम वो है, आप भी उतने बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि आप उन बातों को फेंकता हुआ देख रहे हैं, आप बताने को तैयार नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि उसने हमें मिंबर दिया हुआ है कि हम इन बातों को बयान कर देते हैं और बता देते हैं, वरना समाज और मुआशरा तो दरहम बरहम हो जाए। सूरह यासीन के बारे में, सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। भाई क्यों पढ़ रहे हैं? मरने वालों को बड़ी तकलीफ़ हो गई है, आसानी से इनके रूह निकल जाएगी। क्या नबी ने बताई आपको ये बात? नहीं, नबी ने तो नहीं, हमने तो मुफ्ती साहब को कहते हुए सुना है। आपने तहकीक की? नहीं की तहकीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, कोई भी खबर आए तहकीक करो उसकी। आप यासीन की फजीलत के ताल्लुक़ से हदीस की किताबों के अंदर एक भी हदीस इसकी फजीलत में साबित नहीं है। आज इतना होने के बावजूद कि एक भी हदीस सही नहीं है, उतनी कसरत से इस पर अमल होता है। औरतों को बुला गई हैं, क्या हुआ, चंगो फंगा के घर जाना है, यासीन पढ़ी जाएगी ज़रा। इससे बेहतर था कुरान को पढ़ते, अल्लाह की बरकतें नाजिम होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिम होती हैं। तुम खुद पढ़ते कुरान को, तुम पे रहमतें आती अल्लाह की, रब की रहमतों की बारिशें होती हैं, लेकिन तुमने तरीक़ा बना लिया ऐसा जो नबी का तरीक़ा नहीं था। इसलिए मैंने शुरू में इशारा दिया था, आमिनतुन नासिबा, बड़ी बड़ी मेहनतें करने वाले क़यामत के दिन थक के चूर हो चुके होंगे, तस्ला नारन हामिया, जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह, दुनिया में इतनी मेहनतें की, दीन के बारे में जहन्नम क्यों मिली? कहा तरीक़ा नबी का नहीं था। मेहनत तो बहुत की थी, नमाजी तो बहुत थे, दुआएँ खूब कर देते, तरीक़ा मेरे नबी का नहीं था, इसलिए तुम्हें जहन्नम के अंदर फेंक रहा हूँ। कुरान को पढ़ो तो समझ में आएगा कुरान कहता क्या है, समझाता क्या है। कुरान को तो हम पढ़ते नहीं हैं। कुरान को पढ़िए, जीना सीखोगे। कुरान को पढ़िए, हुकूमतें करना सीखोगे। आज जो बाउंगा बने फिर रहे हो ना, कभी किसी की पार्टी में, कभी किसी की पार्टी में, कभी किसी की तरफ, जिसने जहाँ झुका दिया वहाँ झुक गए। वान तो मुंगांगुना इनकुन तुम मोमिनीन, मोमिन तो बन के दिखाओ। हुकूमत तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है, बनते क्यों नहीं मोमिन? अरे मोमिन बन जाओ, सारी जमातें मुत्तफिक हो जाओ अपने अंदर, भूल जाओ कोई अंग्रेजी हनफी शाफी मांगे की जमात इस्लामी है, कह दो हम सब नबी के मानने वाले हैं, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाओ मोमिन बन के। रब्बे काबा की कसम है, दुनिया तुम्हारी है, किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे ऊपर आँख उठा के भी देखने, हो के तो दिखाओ ऐसे, बन के तो दिखाओ ऐसे। वान तो मुंगांगुन इनकुन तुम मोमिनीन, कौन सी दुनिया में जी गए हो? इसलिए कुरान पर अमल कीजिए, कुरान को पढ़िए। तो यासीन शरीफ के ताल्लुक़ से याद रखिए, हदीस की किताबों के अंदर, अल्लाह के नबी के फरमान के अंदर एक भी हदीस सही सनद से साबित नहीं है। मेरी बातें सुनी, तहकीक कीजिए आप इस बारे में। आज तो नेट का ज़माना है, गूगल पर जाइए, आप सर्च कीजिए ये हदीस कौन सी किताब के अंदर है, ये हदीस कौन सी किताब के अंदर है, कितने नंबर पे है, हदीस ज़ईफ़ क्यों है, अबू दाऊद में आई है तो रिवायत ज़ईफ़ क्यों है।
रिवायत कमज़ोर क्यों है, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। थोड़ी तहकीक कीजिए, मेहनत कीजिए आप। एक बात और आखिरी बात को ख़त्म करते हैं सूरह वाक़िया के ताल्लुक़ से। सूरह वाक़िया हदीस में आता है, आपने फरमाया ये सूरत आखिरत की फ़िक्र पैदा करती है इंसानों के अंदर कि एक दिन क़यामत आएगी, अल्लाह के सामने पेश होगी। लेकिन हमने क्या मांगे इसके बारे में? जो इंसान रोज़ाना रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा कभी भी उसको फ़ाक़ा नहीं होगा। सुना आपने? नहीं सुना? बड़ी मशहूर हदीस है, मौजूद झूठी हदीस है, इन लोगों ने बनाया झूठा इसको और अल्लाह के नबी के नाम में के बयान कर दिया। क्या नहीं होगा? फ़ाक़ा नहीं होगा। अब मुझे बताओ, नबी के घर में 15-15 दिन तक खाने नहीं बनना है, चूंगा नहीं जगा है, वो नबी तो पढ़ते थे इसको, तो नबी को फ़ाक़ा कैसे हो गया? नबी के घर में चूंगा कैसे नहीं जगा रोज़ाना? कभी जौ की रोटी नहीं खाई आपने 3 दिन तक लगातार? तो ये हदीस भी झूठी है, मौजू है, मनगढ़ंत है, साबित नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि एक तरफ जो है सही फजीलत है हदीस के अंदर सूरतों की, और एक तरफ वो फजीलत झूठी है जिनको समाज में फैलाया जा रहा है। इनसे बचिए, बचाइए अपने आप को, अपने समाज को, अपने मुसलमान भाइयों को। जो बातें सही हैं उन पर अमल कीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसके अंदर आपके खाते में नेकियां जमा होंगी। जब दुनिया से जाओगे तो अल्लाह के सामने कह तो दोगे, परवरदिगार हमने दुनिया के अंदर तू जानता है बड़ी मेहनतें की हैं, लोगों को झूठी बातों से रोका है, अच्छी बातों की तालीम दी है। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।